member has asked a very important question which keeps coming into discussion very often. One is, how is Udan scheme, for how much time is it going to run for? Now, when the Udan scheme, the bidding is done and the airlines is ready to operate the route, it is given for 3 years. The whole intention of the government is not to continuously fund the airlines or the passenger airfare, but to give it a kickstart to start operations from that airport, especially to those routes where the viability is not there. So that is why we have said the Udan will be serving unserved where there are no operations at all, or underserved where there are less than 7 flights operating from that airport. Now, Belgavi Airport also, we have done some Udan scheme in the beginning. And now if you see, sir, there are more than 98 flights operating from that through Bangalore, Delhi, Shamshabad, Ahmedabad, Mumbai, Jaipur, Nagpur and Tirupati. So the demand, because of the demand, now many operations are there. But even after 3 years of running that route, if we still feel that the connectivity is not proper to those airports, then within 1 year cooling period, we can still bid the route again, where the Udan scheme restarts itself, and then for 3 more years, we can restart it. And moreover, the Udan scheme was envisaged for 10 years. It started in 2016 up to 2026. We thought this is the time where the regional connectivity should need to be given a big boost. And under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi ji, we have extended it now for another 10 more years. Not just 10 more years, sir. We are going with the aspiration of connecting 120 new destinations. So this is just the beginning. We feel that there is a lot more scope for growth of aviation in the country. And when it comes to the Udan scheme, let us all remember that we are doing it so that we can kickstart the operations, but not to continuously fund the route in itself. Say Anand Badoria. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मुरादाबाद पीतल और हस्तशिल्प के व्यवसाय के लिए देश भर से लोग आते हैं। आप तो मुरादाबाद में प्लेन चलना, तो ये पूछना है ना आपको, सीधा पूछो। तो इसलिए अध्यक्ष जी, मुरादाबाद स्थित जो मूड़ा पांडे विमानपत्तन है, वहां पर पिछले दिसंबर से उड़ानें रद्द हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक वहां हवाई सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। मंत्री जी, फिर आजमगढ़ पूछें क्या? पहले मुरादाबाद की बात करें। आजमगढ़ भी साथ ही बता दो। सर, मुरादाबाद एयरपोर्ट एआई का एयरपोर्ट था और उड़ान के तहत इसको 30 करोड़ खर्च करके हमने अच्छा सा टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाया। उसके बाद वो एयरपोर्ट को उड़ान में लिस्ट किया और बिडिंग के थ्रू हमने मुरादाबाद और लखनऊ का जो रूट था, फ्लाईबिग एयरलाइंस ने उसको लिया और उसने चालू भी किया था ये अगस्त में। और अगस्त के बाद नवंबर की जब बारी आई, नॉर्थ इंडिया में नवंबर में थोड़ा सा फॉग का इशू होता है, तो फॉग के हिसाब से उन्होंने अपने विजिबिलिटी के कारण उन्होंने उस टाइम बंद किया था। फॉग खत्म हो गया, समर का सीजन स्टार्ट हुआ, पर एक और चैलेंज अभी आया कि लखनऊ का जो रनवे है लखनऊ एयरपोर्ट में, उसका रीसरफेसिंग का काम चल रहा है। और रीसरफेसिंग के कारण जो डे टाइम ऑपरेशंस का मेजॉरिटी टाइम है फ्रॉम 11 o'clock to 5 o'clock, वो पूरा बंद पड़ा है, जहां कोई ऑपरेशंस नहीं हो रहे अभी लखनऊ एयरपोर्ट में। उसी के कारण न केवल मुरादाबाद का, बल्कि जो भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स उस लखनऊ एयरपोर्ट से कनेक्टेड हैं, उन सबकी जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अभी जुलाई 15 तक ये रीसरफेसिंग का काम खत्म होने वाला है। उसके बाद जरूर वो एयरलाइंस के साथ फिर बात करके, और उसी तरह आजमगढ़ भी है और बाकी सारे कुशीनगर भी है, 4-5 एयरपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर, ऐसा राज्य है, इतना बड़ा राज्य, और 16 एयरपोर्ट है आज, और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स आज उत्तर प्रदेश में। और ये स्वाभाविक है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सबसे पहले उनकी कनेक्टिविटी अपने राजधानी से हो, यही उनका इच्छा रहता है। और जरूर हम सारे एयरलाइंस जो भी बिड किया है, जहां पे भी अवॉर्डेड है, उन सबसे बात करेंगे कि वो सब जल्दी से जल्दी वो कनेक्टिविटी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 466 श्री ए राजा। प्रश्नकाल समाप्त। मुझे एक क्वेश्चन लेना था। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री